Hello everyone. In this session, we are going to start chapter number 4 of part 1 commercial correspondence. Chapter number 4 is layout of a business letter. Now students, here we will study how the business letter is being made. कैसे हम लेटर लिखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हम इंक्लूड करते हैं लेटर में, that all we will study here. Along with that, you will also study that how to make the appearance of a letter attractive. Now here you will study that there will be few parts of the business letter. Regular parts of the business letter and occasional parts of a business letter. So here, let's see first of all which points are included in the regular parts of a business letter. So heading, date, inside address, salutation, the body of the letter, complimentary clause and signature. All this must be in a pre-decided order and predetermined place. So all these are the regular parts, that is compulsory parts of the business letter. And all these parts contain some necessary information. If any part is missing or if it is misplaced, then जो पूरा structure letter का वो inaccurate हो जाएगा. So these are the compulsory parts of the business letter. And let's have a detailed look about the regular parts of the business letter. First is heading or letterhead. अब ये heading कैसे होना चाहिए? That it should include the postal address of the sender, the email, telephone, fax, website. All the information must be there. Here you can see example has been given. Suppose this is the sender. Better Home Appliances है, वो sender है, तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे कि वो कौन से डीलर्स है, क्या डील, कौन से आइटम्स में डील करते हैं. डीलर्स इन हाउस होल्ड यूटिलिटीज़. फिर उनका एड्रेस दिया है 10 विनीत चैम्बर्स बिहाइंड ST बस स्टैंड. फुल एड्रेस हैज बीन गिवन एंड द नेम ऑफ द सिटी एंड इट्स पिन कोड. फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट है सूरत. उसके बाद आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, दैट इज फोन नंबर, ईमेल एंड फैक्स नंबर. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज देयर. एंड ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि फ़ोन, ईमेल, फैक्स नंबर यहाँ पे है, एड्रेस उसके ऊपर लिखा है. तो अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो दैट हियर यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपनी एंड हियर फोन, फैक्स एंड ईमेल, ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन द लेफ्ट साइड and address details on the right side. This is how you have to write the heading or letterhead of the business. Heading or letterhead includes all the information of the company, like the name of the sender, then its contact details, that is phone number, fax number, email, and all the full address of the sender. So that was the first part of the regular part, that is heading or letterhead. Moving on towards the next part is date. This is the second important feature of the compulsory part of the business letter. Why? Because it gives the information about when the letter was written. अब डेट में दो स्टाइल है, एक है अमेरिकन मेथड, दूसरा है ब्रिटिश मेथड. द डेट कैन बी रेफर्ड इन दिस टू वेज. अब अमेरिकन मेथड में क्या है? It is also called cardinal numbers. Here the name of the month is written first, then the date followed by a comma and lastly the year. अब यहाँ पे क्या होता है, मंथ का नेम सबसे पहला होता है, उसके बाद होती है डेट, कॉमा करने के बाद हमें ईयर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल January 10, 2016. This is the American method. If you want to write in the British method, तो ये कौन सा नंबर हम बोलेंगे? ऑर्डिनल नंबर्स. अमेरिकन मेथड को हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर्स एंड ब्रिटिश मेथड को हम बोलेंगे ऑर्डिनल नंबर्स. नाउ सी हाउ इट इज रिटर्न हियर. द डेट इज रिटर्न विद ST, ND, RD और TH. अगर फर्स्ट लिखना है हमें तो ST लिखेंगे, सेकंड लिखना है तो ND लिखेंगे, थर्ड लिखना है तो RD आएगा ऊपर, और TH, it means 4th, 5th, 6th, 7th and so on.
So in this manner, correct pronunciation along with the ST, ND, RD and TH is written. उसके बाद आएगा name of the month followed by a comma and lastly the year. See the example, 10th January, 2016. So यहाँ पे 10th है तो 10 के ऊपर लिखा है TH. This is the British method of writing date. बट हाँ, वो हमें याद रखना है दैट द मंथ शुड नेवर बी रिटर्न इन शॉर्ट फॉर्म. ऑलवेज द नेम ऑफ द मंथ शुड बी रिटर्न फुल. लाइक जनवरी के हम जैन नहीं लिखेंगे, फेब्रुवरी के लिए हम फेब नहीं लिखेंगे. लाइक दिस वी विल नेवर राइट शॉर्ट फॉर्म. अलॉन्ग विद दिस ईयर का भी हमें खास ध्यान रखना है दैट ऑलवेज द ईयर शुड बी इन फुल फॉर्म. 2016 के लिए हमें 16 या हमें कॉमा करके ऊपर इनवर्टेड कॉमा करके 16 ऐसा भी नहीं लिखना है, बिकॉज बिजनेस लेटर इज द मोस्ट ऑथेंटिक वन. इट शुड नॉट बी इम्प्रॉपर रिटर्न. सी यहाँ पे डेट है 22-01-16, 22/01/16. इट इज़ ऑल्सो एन इम्प्रॉपर स्टाइल ऑफ राइटिंग. हमें अमेरिकन मेथड या ब्रिटिश मेथड यहाँ पे मंथ का नाम लिख के ही लेटर लिखना है. That was the second part. Now comes the third part, that is inside address. Now inside address, that is the receiver's address. हमें यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस दिखाना है. उसके लिए हमें सबसे पहले नाम लिखना होगा जिसके लिए हम लेटर एड्रेस कर रहे हैं. एंड देन आफ्टर अगर डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट है तो हमें डेजिग्नेशन भी लिखना है. एंड वी कैन यूज़ ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिस्टर और मिस और मिसेस. मिस्टर के लिए MR, मिस के लिए MS एंड मिसेस के लिए MRS. सी मिस्टर JK मेहरा, तो हमें MISTER मिस्टर का पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन राइट डाउन MR डॉट, उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन. इफ द गर्ल इज मैरिड देन यू हैव टू राइट डाउन मिसेस वुमेन. और अगर गर्ल है अनमैरिड है तो आप MS या MISS भी लिख सकते हो. देन यू कैन राइट डाउन एस्क्वायर. एस्क्वायर मतलब कि आप ऑनर किसी को बोल रहे हो, किसी को आप एकदम ऑनर दे रहे हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन को लेटर आप लिख रहे हो एंड यू वांट टू शो ऑनर, देन यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस्क्वायर दैट इज ESQ. जो बहुत ही फेमस पॉपुलैरिटी वाले कोई भी प्रोफेशनल है तो उसको हम ESQ लिख सकते हैं, बट दैट वुड बी एट द एंड. मिस्टर मिसेस ये सब स्टार्टिंग में होता है, बट ESQ कहाँ पे होता है? एट द एंड. अब देर आर मैनी पीपल दे ऑप्ट टू मेंशन देयर डिग्री ऑल्सो. उसके साथ उनकी डिग्री भी लिखते हैं, तो एस्क्वायर एंड डिग्री दोनों साथ में भी लिख सकते हैं. लाइक RV वैद्य, नेम ऑफ द पर्सन ESQ दैट इज esquire.PhD. So this is how the inside address of the letter is mentioned. Let's move on towards the next part of the letter. अब यहाँ पे क्या है कि अगर वो डॉक्टर उनका प्रोफेशन या डेजिग्नेशन भी मेंशन करने वाले हैं, लाइक डॉक्टर, प्रोफेसर, सर, पद्माश्री, कैप्टन, कॉलोनल, दैट इज अ पोस्ट इन पुलिसमैन, तो हम उसका भी यहाँ पे लिख सकते हैं DR, डॉक्टर, सर, देन प्रोफेसर, ऐसा कोई भी हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं. प्रिंसिपल है अगर तो हम प्रिंट लिख सकते हैं, अगर उन्होंने PhD डिग्री की है तो डॉक्टर भी हम लिखेंगे. लेडीज़ है तो डॉक्टर, फिर हम SMD लिखेंगे. प्रोफेसर के लिए PROF डॉट लिखेंगे. मैसर्स अगर कोई भी वो बिजनेसमैन है, कंपनी का नाम है तो हम मैसर्स भी लिखेंगे, लाइक मैसर्स राजानी ब्रदर्स. या फिर हम द भी लिख सकते हैं, द रेडिक्स कॉरपोरेशन. If it is a limited company, private company, बैंक और पब्लिक वेंचर, देन हम इनसाइड एड्रेस में डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं और फिर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी है तो. फॉर एग्जांपल हम सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? द सेक्रेटरी जैकर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अहमदाबाद. तो फिर यहाँ पे हम डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे, उसके बाद कंपनी का नाम मेंशन करेंगे और नेम ऑफ द सिटी. There is no need to mention the names of the secretary. For example, दूसरा यहाँ पे the manager, अगर हम SBI के मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं then there is no need to write the name of the manager. Just write down the manager
State Bank of India, Navrangpura, Ahmedabad. So in this type of cases, when you're writing letter to a limited company, private firm, bank और public venture, तो उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ presentation mention कर दो, company का नाम mention कर दो and write the name of the city. That's all. So that was the third part of the regular letter. In the next session, we will continue with the other parts. Thank you all.